Yes. Good evening, everybody, and welcome to this wonderful evening. Hope you are able to listen to me well. Today we have good news. Actually, we have seen on the screen today the result for HSC, the State Board 12th Standard, is been out, and hope you have gone through the news and all. So you may be a bit eager to listen result of the Nuclear Academy, and I'm very glad to let you know or tell you that is we have achieved a very this decade, this 2021-30 is a nuclear decade because we have excelled. Our students, nuclear students, have excelled well in today's results. You have seen on the screen the topper of Nuclear Academy is Sanchit for this year from Vadia branch and Vadia College, and he scored 93% aggregate marks. And as well, the score of mathematics is he scored 98 out of 100 in mathematics, 97 in physics out of 100, and 95 in chemistry out of 100. So this is the score what he has scored. Or also you have gone through the screen. So this is actually the hard work or smart work done by the students and bit guided by the Nuclear Academy. So now many results has to come out. This is the topper of the Nuclear Academy for this year. And now I think so for this year, the turn is yours only. So we are trying to help out the students, and these are the students who are working smartly and hardly to fetch out the best result in 12th standard to make a best foundation for your career. So congratulate all those students. We have scored good marks in 12th and succeeded well. And now this next turn is yours. So heartiest congratulations to all of you, all of us, and all the faculties of the nuclear as well as all the students and you too. And the next turn is yours. So let's go ahead with the thermodynamics. So you may be recalling what we have seen in last lecture. Anyone will recall? So what we have seen in last lecture? Anyone, please? Are you able to listen to me well? Hope you are. Tushar sir, if is there any problem, let me know because I'm not getting responses from the students. So hope so you are able to listen to me. And if I am audible to you, then I will continue with the topic. Yes, sir, no So problem. yes, no problem. Okay. Let's move ahead. With this good news, we'll proceed for our topic or chapter. We are discussing thermodynamics, and actually, we are almost at the middle part of this term. More than that, here in thermodynamics, and we are discussing a very important and core concept of thermodynamics, that is enthalpy. So enthalpy is a total energy content of the system, including its internal energy and pressure, volume, temperature, energy is called as an enthalpy. We have seen different derivations for this enthalpy. Delta H is equal to delta U plus P delta V. That is for the system enthalpy. And when it is applied to the chemical reaction, number of moles has to be included in this one. And we have seen delta H is equal to delta U plus delta nRT. So this is what we are here, enthalpy. Then we have seen enthalpy is involved in many types of changes. Many type of changes enthalpy is involved. So wherever there is any type of physical change, so enthalpy is involved in that point. Whenever there is any change in atomic or molecular level, there is also a change in enthalpy occurs. That may be positive, that may be negative, but every change is accompanied by a change in enthalpy. And we are discussing different types of enthalpies. In last lecture, we have seen this type, that is enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of condensation, enthalpy of freezing, enthalpy of sublimation. Also, we have seen enthalpy of ionization, electron gain enthalpy, enthalpy of atomization, and solution enthalpy. Solution enthalpy is also part of, it comprises of lattice enthalpy and you can say hydration enthalpy. That is what we have seen also. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है और जैसे मैंने बताया था कि when this enthalpy has to apply to the chemistry, chemical reactions especially, then that is also called as a heat of reaction. So now we have to enter into the important concept topic related with this enthalpy is nothing but the thermochemistry. So let's move to the next topic called as thermochemistry, which is a part of enthalpy, no doubt at all. So let's move to the thermochemistry. Thermochemistry. As the name suggests, this is thermochemistry. So thermo means related with the thermal temperature, heat in that sense you can say. So this is a branch of chemistry which is dealing with the heat changes taking place during a chemical or during a chemical reaction. So every reaction is accompanied
by change in heat. That may be endothermic reaction, that may be exothermic reaction, but whatever the heat changes took place during the course of chemical reaction, these are studied under this thermochemistry. So thermochemistry is a branch of chemistry, that is a branch of thermodynamics which deals with heat changes taking place during the course of chemical reaction. So chemical reaction के अंदर जो भी heat changes होते हैं उसी के साथ वो जुड़ा हुआ है. That is also part of enthalpy, because whatever the heat is enthalpy, whatever enthalpy is a heat. इसीलिए मैंने कहा कि here onwards अगर मैं heat भी कहता हूँ तो that counts to be enthalpy, because enthalpy हम लोग system sense में, general sense में use करते हैं, or when it is applied to the reactions, that may be called as heat in that sense. So उसी तरीके से उसे लीजिएगा. So thermochemistry is this. It is a branch of chemistry which deals with heat changes taking place during the course of chemical reaction, and that is what we study. Suppose we have the reaction. हमारे पास reaction है. A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C plus D moles of D. ये ऐसा reaction है. इसके अंदर ये जो small letters है, small a, small b, वो indicate करते हैं number of moles, और capital letter indicate करते हैं symbols of elements, symbol of element. So A moles of substance A reacts with B moles of substance B, produces C moles of C substance and D moles of D substance. इस टाइप से हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे केमिकल रिएक्शन देखा था, N2 plus 5H2 produces twice NH3. So coefficient always represent the number of moles. Coefficient always represent the number of moles. That is what we discuss किया, हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो उसी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा रिएक्शन है. किसी भी रिएक्शन के अंदर these are the reactant and these are the products. Now reactant must be initial state and product must be a final state, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं thermodynamic consider only initial state and final state. Thermodynamic never consider path followed by the system. So this is the initial state and this is the final state. So absolutely, when we have to find out the change in enthalpy, तो change in enthalpy क्या होगा? हम अच्छी तरह जानते हैं. Change in enthalpy is equal to H2 minus H1. इस तरीके से होता है. H2 minus H1. So H represent the enthalpy. So H1 must represent the enthalpy of initial state. H2 must represent the enthalpy of final state. And the difference between the enthalpy is called as a change in enthalpy. So change in enthalpy for this reaction can be written like this one. That is enthalpy of final state minus enthalpy of initial state. अभी इस रिएक्शन के अंदर initial state is the reactant and final state is the product. तो ये H1, H2 के वैल्यू उस हिसाब से रखने पड़ेंगे. लेकिन इसके अंदर देखिए ना, जैसे मैंने कल बताया कि enthalpy depends upon number of moles. Number of moles के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये substance A है और इसके number of moles A है. So that's why enthalpy of A substance multiply by number of moles of A, because moles बदलेंगे तो enthalpy बदल सकता है. तो इसीलिए ये इस तरीके से हो सकता है, that is you can say delta H is equal to these are the reactant and these are the product, और product एक से ज्यादा है, reactant भी एक से ज्यादा है, and that's why सारे इसका enthalpy ऐड करना पड़ेगा. सारे इसका enthalpy क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. H2 का वैल्यू क्या होगा फिर? H2 is product. So this is enthalpy of substance C. Enthalpy of substance C into its number of moles. Enthalpy of substance C into its number of moles plus enthalpy of D into number of moles of D. ये आएगा पहले ब्रैकेट में. Also this is the total enthalpy of product, that is H2 final state, minus ये reactant है, reactant ये है हमारे, that is initial state. तो इधर क्या होगा फिर? Enthalpy of A substance into number of moles of A plus enthalpy of B substance into number of moles of B. ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा और ये टोटल ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, like this one, square bracket. So इसके अंदर आ जाएगा. So this is the addition of enthalpies of product. This is the addition of enthalpies of reactant. और दोनों का डिफरेंस जो चेंज इन एंथैल्पी होगा. तो भी ये ऐसा फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. जब हम फाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम लोग समेशन का फॉर्म यूज करते हैं. तो इसे अगर हम और सिंपलीफाई करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू समेशन ऑफ enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant. This is what we can say. Or simply you can write here delta H is equal to summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant. This is the formula, short formula what we can write here. So this is the way how we are going to calculate the enthalpy of reactions. Hope so you get it. So what is thermochemistry? Thermochemistry is a branch of chemistry which deals with heat changes taking place during the course of chemical reaction. This is the chemical reaction. How we are going to calculate the heat of this reaction, that is enthalpy of this reaction. So enthalpy of reaction is enthalpy of product minus enthalpy of reactant. क्योंकि reactant is initial state and product is final state. और दोनों का डिफरेंस होता है. हाँ तो हाँ सर बोलिए. हाँ सर थोड़ा ब्लर दिसता है, फोकस करा.
थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा टच करो उस कैमरा को। हाँ किया सर, किया होप सो अभी दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। यस, हाँ, नाउ गेटिंग वेल। यस सर। हाँ होता है कभी कभी, थोड़ा सा वो कनेक्टिविटी के कारण लेंस थोड़ा एडजस्ट करता है तो टाइम लगता है उसके लिए। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट वी गेट हियर। तो जैसे मैंने बताया कि वी हैव दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर दिस आर द रिएक्टेंट एंड दिस आर द प्रोडक्ट। तो एज पर द रूल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, इसलिए उनका क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। सो हम डीजल में अगर इक्वेशन लिखना चाहते तो इस तरीके से लिखेंगे, और उसे जनरलाइज करना चाहते तो इस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। सो चेंज इन एंथैल्पी इज समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स minus summation of all the enthalpies of reactant. So that is what we can say. This is the equation. So this is the way how we are going to calculate the enthalpy of reactions. Clear with this? So ये इस तरीके से होता है. Now, what are the sign conventions of this delta H? What are the sign conventions of this delta H? This is nothing but the change in enthalpy, also called as a heat of reaction. Delta H is called as an enthalpy, change in enthalpy, or also known as heat of reaction. और हम अच्छी तरह जानते हैं there are two types of reactions: exothermic reactions and endothermic reaction. अगर in case this delta H, if delta H is negative, और दूसरा if delta H is positive, दो वैल्यूज हो सकते हैं, that is delta H can be a negative and delta H can be a positive, दोनों वैल्यू हो सकते हैं। तो उसका वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे हम लोग। इफ इट इज नेगेटिव, तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। सो अगर हीट रिलीज किया सिस्टम ने, दैट मस्ट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिस्टम हमारा कौन है, रिएक्शन है, तो रिएक्शन ने अगर हीट रिलीज कर दिया तो दैट इज व्हाट वी कैन से हियर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड अगर रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब कर लिया, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयर इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ मच हीट इज रिलीज्ड, either heat is released or either heat is absorbed. So delta H is negative, that must be a exothermic reaction, and if delta H is positive, that must be an endothermic reaction. तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अगर हम जानते हैं कि इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आना है तो डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। सो इफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, then delta H will be positive, and if it is positive, that is you can say endothermic reaction. और उल्टा होता है, the enthalpy of product is less and enthalpy of reactant is greater, so delta H will be negative, और if it is negative, that is an exothermic reaction. तो exothermic reaction कब हो सकता है, ये enthalpy किसका ज्यादा है, either product का summation of enthalpy of product is greater or either summation of enthalpies of reactant is greater. Depend upon that we will get either exothermic reaction or either you can say endothermic reactions. Clear with this? So these are the two types of reactions what we get here here under this thermochemistry. Clear? अभी कई बार हम लोग एंथैल्पी करते जा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा वो एंथैल्पी देखा। Now we have to discuss standard enthalpy. Okay, let's move here for the standard enthalpy. So we have standard enthalpy. Standard enthalpy. अब देखिए हम लोग जो एंथैल्पी लिखते हैं डेल्टा एच, हम एंथैल्पी लिखते हैं डेल्टा एच। नाउ हमने जो टर्मिनोलॉजी लाया है दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो हियर मस्ट बी डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर हमें तीन टर्म्स ऐसे आएंगे, एंथैल्पी आती है, फ्री वालेस, एंट्रोपी आता है, फिर गिब्स एनर्जी आता है। ये सारे टर्म्स में नॉर्मल और स्टैंडर्ड दोनों तरीके से आते हैं। सो डेल्टा एच अगर लिखा जाता है तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एच नॉट लिखा जाता है, राइट। सभी में यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे अगर हम लोग नॉट लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, तो दैट इज यू कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो डेल्टा एच नॉट बिकम्स योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो डेल्टा एच is just change in enthalpy and delta H naught is a standard enthalpy. ये दोनों में डिफरेंस है। अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसे कहेंगे? सेम रिएक्शन, अभी का जो रिएक्शन दिया था हमने वही रिएक्शन हो सकता है जिसका एंथैल्पी हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि A moles of A reacts with B moles of B produces C moles of C plus D moles of D, ऐसा इसका। और इसका जो एंथैल्पी है डेल्टा H भी हो सकता है और डेल्टा H नॉट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अभी डेल्टा एच कब हो सकता है और डेल्टा एच नॉट कब हो सकता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। ये दोनों हम लोग यहाँ पे समझने डिस्कस करने। द थिंग इज दैट एंथैल्पी निकालने का तरीका और फार्मूला तो वही है, दैट इज एंथैल्पी समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। फार्मूला वही रहेगा, बट वो एंथैल्पी कब रहेगा और स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब रहेगा वो फर्क है। सो चेंज इन एंथैल्पी whenever
all the reactants and product involved in a chemical reaction are in their standard state, then the change in enthalpy in that case of that reaction is called as your standard enthalpy. स्टैंडर्ड एंथैल्पी होने के लिए हमारे सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। अगर हमारे सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, तभी जाके उस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी भी स्टैंडर्ड होगा। अगर एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो उसका एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी रहेगा। क्लियर? दो इस रिएक्शन के अंदर हमारे 1 2 3 4 चार सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। चार में से एक भी सब्सटेंस अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, देन इस रिएक्शन का एंथैल्पी रहेगा नॉर्मल चेंज इन एंथैल्पी। और सारे के सारे सब्सटेंस अगर उनके स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसका एंथैल्पी रहेगा हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो all reactants and product involved in a chemical reaction, if they are in their standard state, then the change in enthalpy of that reaction must be a standard enthalpy. समझ रहे आप लोग? है ना? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी उसी तरीके से कहा जाता है। सो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी उस तरीके से आ जाता है। अभी स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा माना जाता है? आपके सामने सवाल होगा। चलो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट एक्चुअली? तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है कि स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 bar प्रेशर एंड 298 केल्विन टेंपरेचर। किसी भी सब्सटेंस का 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेंपरेचर पे जो भी होता है, से यू कैन से 1 bar ये प्रेशर है और यू कैन से 298 केल्विन ये टेंपरेचर। ये दो कंडीशन पे जो भी सब्सटेंस का स्टेट होगा, दैट स्टेट मस्ट बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कोई भी सब्सटेंस हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 1 atm प्रेशर पे और 298 केल्विन टेंपरेचर पे ऑक्सीजन रिमेन्स इन ए गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन प्रेजेंट इज इन ए गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। गैसियस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। टेक एग्जांपल ऑफ आयन। आयन मेटल की बात करते हैं हम लोग। आयन मेटल ये दोनों कंडीशन पे सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। सो सॉलिड स्टेट ऑफ आयन मस्ट बी कॉल्ड एज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट होता है। क्लियर विद दिस? एंड दैट मस्ट बी इन प्योर फॉर्म टू। प्योर फॉर्म में भी होना चाहिए। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी होती है, व्हेन वी अप्लाई टू द एलिमेंट्स दैट इज प्योर सब्सटेंसेस, so the enthalpy of any pure substance, that is pure element, in its standard state must be taken as zero, must be taken as zero। किसी भी सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का, प्योर एलिमेंट का, मतलब प्योर एलिमेंट की बात करते हैं, करेक्ट कीजिए वर्ड, किसी भी प्योर एलिमेंट का उसके स्टैंडर्ड स्टेट में उसका एंथैल्पी जीरो लिया जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो लिया जाता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए, क्योंकि हम जनरली भूल जाते हैं कि हमें नहीं दिया किसी रिएक्शन के अंदर, मान दिया है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो कॉपर का एंथैल्पी नहीं दिया, बट हमें ये समझना चाहिए कि कॉपर इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। If copper is given in standard state, then its enthalpy should be zero। समझ रहे हैं आप लोग? So दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं। नंबर वन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है? It is the enthalpy of the reaction. It is the change in enthalpy of the reaction when all reactants and products are in their standard state. And what is actually a standard state? The state of substance at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature is called as its standard state. Whatever is that. Water की बात करते हैं तो water is in liquid phase, है ना? आयन की बात करते हैं इट इज इन सॉलिड फेज, ऑक्सीजन की बात करते हैं इट इज इन गैसियस फेज। दैट फेज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। एंड द एंथैल्पी ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, एनी प्योर एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट मस्ट बी टेकन एज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग कि एंथैल्पी ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस और प्योर एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट मस्ट बी टेकन एज जीरो। So that's why in order to solve the numericals, it would be useful to you. Hope so you got this concept called as standard enthalpy. तो सबको standard enthalpy समझा होगा आपको। So इसलिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा H is equal to H2 minus H1, there must be in standard, तब जाके ये standard आएगा। ठीक है? फिर हम ऐसा लिखते हैं कि डेल्टा H is equal to summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant। ऐसा ये फॉर्मूला अभी देखा था हमने। इसके अंदर होता क्या है कि ये एंथैल्पी है। अभी ये नॉर्मल एंथैल्पी, तो ये भी नॉर्मल एंथैल्पी है। अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो दिस मस्ट बी अ स्टैंडर्ड, दिस मस्ट बी अ स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बताया कि एंथैल्पी नॉर्मल हो सकता है, अलग भी हो सकता है। स्टैंडर्ड होने के लिए सारे के सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, और एक भी सब्सटेंस अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो दिस विल बी नॉर्मल एंथैल्पी, नॉर्मल चेंज।
So that is the concept of, you can say, standard change in enthalpy. ये हमारे सामने आ जाता है, and that is what we are here. Clear with this? So this is the standard enthalpy, and this is also called the enthalpy of reaction. तो अभी इसी के अंदर आता है standard enthalpy of reaction. तो इसी के साथ सीखा था, मतलब हेडिंग थोड़ा सा अलग है, standard enthalpy of the reaction. इसके पहले देखा था हमने thermochemistry, enthalpy of the reaction. अभी standard enthalpy of the reaction. तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया वही है, the change in enthalpy of a chemical reaction when all the reactants and product involved in the reaction are in their standard state, then that must be called as a standard enthalpy of a reaction. Standard enthalpy अलग है और standard enthalpy of reaction अलग है. Standard enthalpy क्या है? When all the substances are in their standard state, the enthalpy of that system has to be called as standard enthalpy. और standard enthalpy of reaction, तो उसको reaction होना जरूरी है, और reaction के अंदर के सारे reactant and सारे product कौन से state में होना जरूरी है? That has to be in standard state. Then it is called as standard enthalpy of reaction. Remember this? So that's what we are. तो ये भी concept उसके साथ हमारा हो जाता है. Now, the two more different types of enthalpy. Two more different types of enthalpy are nothing but, number one, is, you can say, standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. Formation, format, तैयार होना है. So हम जैसे लिखते हैं डेल्टा FH और यहाँ पे आएगा नॉट. हम अच्छी तरह लिखते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी हमें डेल्टा और H में लिखना है, और ये जो मिडिल वर्ड है वो प्रोसेस बताता है कि कौन से टाइप का एंथैल्पी है. तो F फॉर फॉर्मेशन, डेल्टा FH और नॉट फॉर स्टैंडर्ड. तो डेल्टा FH लिखता था तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता था. यहाँ पे डेल्टा FH नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये इस तरीके से आ जाता है. ठीक है. अभी आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं. यू कैन से H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, और इसका जो है डेल्टा FH नॉट इज -286 ऐसा है. ठीक है. तो अभी इस एग्जांपल के अंदर देखिए कि दिस इज ऑक्सीजन व्हिच इज हाइड्रोजन व्हिच इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन व्हिच इज इन गैसियस स्टेट एंड वाटर व्हिच इज फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट. ये हमारा ये है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन है हमारा. और ये लिखने का भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें देखना है. ये दो डेफिनेशन के बाद वो भी देखेंगे हम लोग. सो नाउ सी, this is hydrogen which reacts with oxygen to produce water molecules. तो हाइड्रोजन जनरली स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस स्टेट में होता है, और वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है. लिक्विड मतलब वाटर इटसेल्फ इज लिक्विड. तो ये H2O का लिक्विड स्टेट है व्हिच इज द स्टैंडर्ड स्टेट, क्योंकि 1 बार और 290 किलो टेंपरेचर पे ये होता है. सो ये सारा रिएक्शन स्टैंडर्ड है, और ये सारा रिएक्शन स्टैंडर्ड है, तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी स्टैंडर्ड आएगा. ये भी क्या आएगा? स्टैंडर्ड आएगा. तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड. But why it is called as a standard enthalpy of formation? The reason behind that, here 1 mole of water is formed. 1 mole of water is formed from this constituent elements. Water कौन से elements का बना हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं तो water is made up of hydrogen, water is made up of oxygen. अगर ये water हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी से बना हुआ है तो ये रिएक्शन स्टैंडर्ड माना जाता है. सारे सब्सटेंसेस स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका एंथैल्पी स्टैंडर्ड माना जाता है. और अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तैयार हो चुका है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल. सो ये इस तरीके से आ जाता है हमारे सामने. तो डेफिनेशन हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. द चेंज इन एंथैल्पी, देखिए सारे डेफिनेशन के अंदर भी कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं. द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन all the reactants and product involved in their substance are in their standard state, and 1 mole of pure substance is formed in its standard state from its constituent elements which are in their standard state. Constituent मतलब formed substance, the substance which is formed has to be in a standard state, and the substances of which it is made up of, these substances has to be in their standard state, isn't it? Constituent elements भी होना जरूरी है और standard state में होना जरूरी है, constituent elements, and then that is called as standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. So standard enthalpy of formation is a change in enthalpy when 1 mole of pure substance is formed in its standard state from its constituent elements which are in their standard state, then that is called as standard enthalpy of formation. सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए. वाटर 1 मोल तैयार होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में तैयार होना चाहिए, और उसके एलिमेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, और तब जाके उसका जो चेंज इन एंथैल्पी होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा. दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, उसके लिए बेटर रहेगा आपको. This is H2 gaseous plus Cl2 gaseous gives you twice HCl gaseous. ये हम लोगों को मिल जाता है.
और इसका जो एंथैल्पी है दैट इज यू कैन से चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू -284 किलोजूल, ऐसा है -284 किलोजूल, इतना है। हाँ, अब देखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट में है, HCl स्टैंडर्ड स्टेट में तैयार हो चुका है, एंड दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द स्टेट, और इसे मैं स्टैंडर्ड कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कह सकता हूँ। So I am saying this is the standard heat of reaction, but I am not saying this is a standard heat of formation. I can't say it is a standard heat of formation. The reason behind that, standard heat of formation के अंदर और एक important condition आता है, that is 1 mole of substance should be formed. जो substance तैयार हो रहा है उसका 1 ही मोल तैयार होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखते हो तो कितना यहाँ पे 2 moles तैयार हो चुके हैं, 2 moles. तो this is the heat of reaction for 2 moles when 2 moles are formed. और definition के हिसाब से हमें 1 mole के लिए चाहिए। So that's why we said 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, समझ रहे? तो स्टैंडर्ड ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर 1 mole of substance should be formed in its standard state from its constituent elements which are in their standard state. Then and then only we can say this is the standard heat of formation. तो this is standard heat of formation क्योंकि यहाँ पे 1 mole तैयार हो जाओ, this is the standard heat of reaction. हाँ, इसे डिवाइड बाय 2 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स के लिए इतना है, तो 1 मोल्स के लिए कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ गया, दैट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, नहीं करेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज द फॉर्मेशन, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर विद दिस? तो change in enthalpy whenever 1 mole of substance is formed from its constituent elements which are in their standard state, then that is called as standard enthalpy of formation, standard heat of formation, clear with this? उसके अपोजिट में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है वापस हमारा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसा अभी हमने देखा फॉर्मेशन, वैसे आता है कंबशन, कंबशन प्रोसेस। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा सी एच नॉट, तो डेल्टा सी, सी फॉर कंबशन, सी फॉर कंबशन। और हम जानते हैं कंबशन का मीनिंग क्या होता है, कंबशन मींस बर्निंग द सब्सटेंस, कंबशन का मीनिंग है बर्निंग द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबशन, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर एयर के प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके दैट फॉर्म्स ऑक्साइड। से फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन को बर्न करते तो से, मतलब एग्जांपल देता हूं कि सी सॉलिड प्लस O2 gives you CO2, this is in gaseous state, ठीक है? Now see this reaction well, what do you get here? Carbon is in standard state because it is in solid phase. This is oxygen which is in gaseous state, that is also standard state for that, and this is the CO2 form which is in gaseous state. इस रिएक्शन को दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम, that is carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. But how carbon reacts with oxygen? The reason behind that, carbon is burnt in presence of air, so that's why it produces carbon dioxide. So this is the burning process, means a combustion process. That is combustion process. So whatever is burnt in presence of air, that has to be a combustion process. So this is called as a combustion process. This is called as a combustion state. Are we clear with this? So in that sense, you can say this is a combustion. किसी भी substance को अगर हम burn करते हैं in presence of air, that reacts with oxygen to form its oxides. And that process is called as a combustion process. उसे हम लोग combustion process कहते हैं. So किसी भी substance का combustion करेंगे, that also is accompanied with a change in enthalpy. That process is also accompanied with change in enthalpy. So that is also change in enthalpy. So that's why we are discussing the topic, that is standard change in standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy of combustion. For example, मैं आपको देता हूँ इसका. That is ये तो example रहा. इसका जो enthalpy आता है, that is delta is equal to 395 kilojoule इतना आता है. Okay, standard enthalpy of combustion of carbon. कार्बन के 1 मोल को अगर हम लोग बर्न करते हैं, दैट इज कंबस्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल आर इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड दिस इज द कंबशन प्रोसेस इटसेल्फ. सो व्हाटएवर द चेंज इन एंथैल्पी, व्हाटएवर द हीट ऑफ रिएक्शन, दैट हैज टू बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड दिस इज 395 किलोजूल फॉर दिस वन. उसी तरीके से हम लोग ये ले सकते हैं C2 C2H6 लेते हैं हम लोग, C2H6 लेते हैं, या C2H2 भी ले सकते हैं. ओके, C2H2 प्लस O2 ऐड करते हैं उसके अंदर, मतलब this is C2H2 which is burnt in presence of this one. या आप commonly जानते हो C2H6 which is ethane, आप जानते हो. Whenever ethane is burnt in presence of oxygen, what will happen? This carbon will react with oxygen to form carbon dioxide. Carbon dioxide तैयार हो जाता है, so this is carbon dioxide. और hydrogen will react with oxygen to form H2O. H2O तैयार होगा. अब ध्यान रखिएगा, कार्बन के दो एटम्स हैं.
तो कार्बन के यहाँ पे 2 आइटम लिखना, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो कार्बन गॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के देखिए 6 आइटम्स यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे लिखा है 6, मतलब यहाँ पे थ्राइस लिखना पड़ेगा, तो थ्राइस H2। तो हमें पहले क्या बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन उसके बाद में, सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, because it is a combustion process, it is burned in presence of air. So carbon got balance, hydrogen also got balance. Now we'll balance the oxygen. The oxygen इस तरफ देखो कितना है, ये 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, and this is 3 4 और कितना बनेंगे आपके, as you can say 7 ऑक्सीजन बनेंगे आपके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7/2 करना पड़ेगा, 7/2 लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे O2 के फॉर्मेट में लेना पड़ता है। ऑक्सीजन has to be taken into the format of O2, that is molecular form. So all reactions has to be written in a molecular format like this. O2, तो 7/2 O2 आएगा, तो 7 2 14, 14/2 is 7, तो 7 ऑक्सीजन में आ जाएंगे। इसका जो अगर आप लोग देखते हो, हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू 660 किलो जूल, इतना आ जाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन इज दिस वन, सो वी गॉट दिस स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन फॉर दिस ईथेन, इतना आ जाता है। क्लियर विद दिस? सो कंबशन इज burning the substance in presence of air, or whenever any substance is burned in presence of air, it reacts with oxygen to form its oxide. So carbon dioxide, carbon dioxide, hydrogen peroxide, water. So there forms, and accordingly the energy is released, accordingly the heat is released, and that is nothing but the enthalpy of combustion. That is nothing but the enthalpy of combustion. Sort of get it? पहला जो देखा था हमने वो था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये जो देखा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करेंगे, हमारे घर में जो सिलेंडर आता है, जो गैस आता है, उसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर मीथेन है, इथेन है, आइसोब्यूटेन गैस है, ऑल दिस गैस जब व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने 10th में देखा था। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर बर्निंग प्रोसेस, उसका एक्सपेरिमेंट आपने 10th में किया था। तो हमारे घर में जो गैस चलता है वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है, तब जाके तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे आई हैव राइट minus 1660 kilojule of energy is released. These data check it out from your book, because these values may change book to book, different book में अलग होते हैं, अभी updated book में शायद थोड़े बहुत values इधर हो सकते हैं। So I believe to check it from your textbook or board textbook. Clear with this? So this is what we are standard enthalpy of combustion. तो दो हो गए, standard enthalpy of formation and standard enthalpy of combustion. That is what we can say. Clear with this? So now let's move to the next concept called as thermochemical equation. Thermochemical equations. Thermochemical equations means many reactions we write in organic chemistry. Many reactions we write in organic chemistry. उसी तरीके से thermodynamics में भी reaction लिखने का एक तरीका होता है। और ऑलरेडी हम अच्छी तरह जानते हैं, स्टोशियोमेट्री नाम के एक बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में, जहां पे हमने ये देखा था कि स्टोशियोमेट्री इज राइटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Whatever the number of atoms of every element present on the left hand side, that is on the reactant side, must be equal to number of atoms which are present on the right hand side. And that is, if all these atoms are balanced, then that is called a balanced chemical equation, which is studied under stoichiometry. So stoichiometry is writing balanced chemical equations. तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है वो लिखने का भी एक तरीका होता है। जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन लिखने का एक तरीका है, बैलेंस तरीके से रिएक्शन लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का भी तरीका होता है। अभी जो कई सारे मैंने लिखे थे वो सारे थर्मोकेमिकल इक्वेशन थे, जैसे कि कार्बन का, कार्बन सॉलिड प्लस O2 gaseous gives you CO2 gaseous, और here delta H is equal to minus 395 kilojoule. This is the thermochemical equation. अभी जो मैंने लिखा था वो भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन था, कई सारे एग्जांपल लिखे थे, ऑल दीज आर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी हम लोग जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर ये सारे रूल्स है, देयर आर मेनी रूल्स एंड दैट रूल्स हैज टू बी फॉलोड, दिस रूल्स हैज टू बी फॉलोड, देन एंड देन ओनली वी कैन राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, और दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ राइट। सो व्हाट आर द रूल्स? Number one, state has to be mentioned. State of all the substances, all reactants, all products. In which state they are actually present? Either they are in solid phase, they are in liquid phase, they are in gaseous phase. That has to be mentioned. तो यहाँ पे मेरे सारे substances gaseous phase में, तो right suffix में I have written a G for gaseous. अगर liquid होता तो L, जैसे water के केस में हमने लिखा था, और कार्बन के केस में हम solid, जैसे यहाँ पे कार्बन है, जहाँ मैंने solid लिखा है, तो कार्बन के केस में क्या रहेगा? Solid रहेगा। So जो सब्सटेंस सॉलिड फेज में है उनके राइट सफिक्स में S लिखेंगे ब्रैकेट में, जो गैसियस स्टेट में उनके लिए राइट सफिक्स में G लिखेंगे, और जो लिक्विड फेज में उनके लिए L लिखेंगे, राइट सफिक्स ब्रैकेट में। So this is the way, this is the first rule, to write the state of all the substances, all the reactants or products involved in a chemical reaction.
दूसरा दूसरा we have to, the coefficient in all the chemical reaction always represents number of moles. Stoichiometric coefficient, coefficient मतलब इसके आगे का, इसके आगे जो coefficient होता है that must represent a number of moles. So here is 1, so we can read 1 mole of carbon. Here is also 1 mole of oxygen. Here is also 1 mole of carbon dioxide. नाइट्रोजन के केस में जो मैंने अमोनिया का केस दिया था N2 plus thrice H2 produces twice NH3. तो 3 moles of hydrogen और 2 moles of ammonia तैयार होते हैं. So stoichiometric coefficient always represents number of moles. So this is number of moles. Always represents number of moles. Never consider it as a number of molecules. बहुत बार बच्चे गलती करते हैं. They make it as number of molecules. Never. That has to be number of moles. So that is what we are here. Clear with this? Now let's move to the third one. Third one में whatever the heat of reaction, that may be endothermic reaction, that may be endothermic reaction, that has to be written to the right suffix. Right suffix में लिखा जाता है. अब ये दो तरीके से लिखा जा सकता है. अगर मुझे डेल्टा H लिखना है तो डेल्टा H इज इक्वल टू -395. अगर मैं डेल्टा H हटाता हूँ तो मुझे -395 लिखना पड़ेगा बिकॉज ये रिएक्टेंट का पार्ट हो जाता है, रिएक्शन का पार्ट हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ डेल्टा H मैं सीधा -395 लिख सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है वैसा वहाँ पे माइनस, बिकॉज दिस इज रिलीज होता है तो उतना बार आएगा. सो दैट इज व्हाट वी आर. दो तरीके से लिखा जा सकता है. व्हाटएवर द हीट ऑफ रिएक्शन दैट हैज टू बी रिटन टू द राइट सफिक्स, वो लिखना ही पड़ेगा, वो उसके अंदर का इंपॉर्टेंट है. सो डेल्टा H आपको लिखना पड़ता है. फोर्थ की बात करते हैं. जैसे कि हम लोग NaCl की रिएक्शन लिखते हैं, सी NaCl गिव्स Na प्लस Cl माइनस, ऐसा रिएक्शन है. सो रिएक्टेंट हमने कौन से फॉर्मेट में लिया, प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में तैयार हो चुके हैं, है ना. हमने अगर प्योर सब्सटेंस लिया है तो प्योर, अगर हमने सब्सटेंस एक्वियस फॉर्म में लिया है तो एक्वियस लिखना पड़ेगा. तो अगर मानो मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा और पानी के अंदर से पुट कर दिया तो हियर विल बी एक्वियस, क्योंकि आयंस तभी मिलेंगे. प्योर सब्सटेंस में तो आयंस होंगे नहीं, मतलब प्योर NaCl मेरे पास है उसमें से सोडियम अलग है Cl अलग है, ऐसा नहीं होता है. सो इन दैट सेंस व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर दे प्रोड्यूस आयंस, और if substances are present in the form of ions, that has to be mentioned as ions, and right suffix if they are present in the form of water, that is aqueous, that has to be written to the right suffix. So right suffix में we'll have to write that is the aqueous form. Aqueous लिखना पड़ता है. So substances अगर pure form में लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर pure form में नहीं है तो aqueous form में लिया तो aqueous लिखना पड़ेगा आपको. So these are the rules how to write the thermochemical equation. तो thermochemical equation में state of the substances has to be mentioned to the right suffix. Stoichiometric coefficient always represents the number of moles. Heat of reaction should be represented by delta H. If it is delta H, delta H. If it is delta H not, जो भी है वो right तरीके से. अगर सिर्फ change in enthalpy है तो change in enthalpy. अगर standard change in enthalpy तो delta H not, and to the right side of the reaction. And if substances are taken in their pure form or either in the aqueous form, that has to be mentioned very well. तो वो हमें वहाँ पे mention करना पड़ता है, तो वो उसी तरीके से आते हैं. Clear with this? So ये भी उसी के अंदर आता है. So these are the rules to write thermochemical equations. तो हमने जितने सारे enthalpies अभी तक देखे हैं, फ्यूजन से लेकर यहाँ तक के सारे, इसमें जितने सारे इक्वेशंस लिखे हैं सारे इसी फॉर्मेट में लिखने हैं. अगर नहीं लिखते हो तो इसके लिए मार्क्स काटे जाते हैं. हमने यहाँ पे गैसेस लिखना रह गए, यहाँ पे सॉलिड लिखना भूल गए, यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू लिखना भूल गए, तो उसके लिए मार्क्स काटे जाते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज राइट thermochemical equations followed by these rules or using these rules. That is what clear with this? ये उसके अंदर आता है. ठीक है. Let's move to the next concept. Next concept is called your bond enthalpy. So let's move to the bond enthalpy. Bond enthalpy. So this is, you can say here delta V H naught or delta B H. या B के बदले bond भी लिख सकते हो आप लोग. So bond enthalpy. अभी ये bond enthalpy खास और एक अलग definition में important है. कैसे आप देखिएगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि twice H, या फिर ऐसा लिखते हैं कि H plus H here produces H2. इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि one hydrogen atom reacts with another hydrogen atom from H2 molecule. अभी दो atoms होना अलग बात है, और when atoms come together they form molecule. और ये जब molecule तैयार होता है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे H ये तैयार होता है, H और H के बीच में बॉन्ड तैयार हो चुका है, ये बॉन्ड तैयार होता है. और जब भी कभी ये बॉन्ड तैयार होता है तो यहाँ पे खास करके हाइड्रोजन के केस में डेल्टा H इक्वल टू -436 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज. हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जब तैयार होता है तो 436 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज्ड. दिस इज द राइट एग्जांपल फॉर दैट. तो इतना एनर्जी रिलीज होता है. तो ये एनर्जी आया कहाँ? दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड. ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. सो दैट इज यू कैन कॉल इट बॉन्ड एंथैल्पी.
सो हर बॉन्ड के साथ हीट और एनर्जी जुड़ी हुई है, and that energy is called as bond enthalpy. Whenever bond is formed, energy is released. तो उसके अपोजिट में when bond has to be broken, energy has to be supplied. ये दोनों उसी हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं. So in that sense, what we can say, whenever bond is formed, energy is released. That is exothermic process. Bond formation is always exothermic process. Or whenever bond has to be broken, energy has to be supplied. That has to be endothermic process. So that happens here. So उसी तरीके से bond enthalpy is also called as bond formation energy, also known as bond dissociation energy. बस साइन गेट्स रिवर्स. बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए साइन रहेगा माइनस और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए साइन रहेगा प्लस. सो बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी और बॉन्ड फॉर्मेशन, और यू कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन, दोनों भी कहे जा सकते हैं. ये होता है. लेकिन इस केस में एक ही बॉन्ड था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन अगर हम लोग मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने देखी कि CH4, तो मीथेन CH4 की बात करते हैं तो यह C प्लस 4H ऐसा आएगा. तो अभी मीथेन के अंदर देखेंगे तो CH और H ऐसा है, तो ये आ जाता है. सो इस केस में देखिए ना, अगर बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे तो 4 बॉन्ड तैयार हो रहे हैं, और बॉन्ड ब्रेक भी करना है तो चारों ब्रेक करने पड़ेंगे. और मैंने ये बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन. बॉन्ड फॉर्म होते समय जितना एनर्जी रिलीज होता है, ब्रेक करते समय उतना ही एक्सेप्ट किया जाता है. सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग. साइन रिवर्स होता है, साइन फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो यहाँ पर भी देखिए ना, ये 4 बॉन्ड्स है. अभी ये मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर हर बॉन्ड का एनर्जी अलग है, हर बॉन्ड का एंथैल्पी अलग है, हर बॉन्ड का एंथैल्पी अलग है. लेकिन सारे CH बॉन्ड तो है, सारे बॉन्ड तो CH ही है ना. दिस इज CH, दिस इज CH, सारे बॉन्ड तो एक जैसे हैं, CH के बॉन्ड है, फिर भी एंथैल्पी अलग है, फिर भी एंथैल्पी अलग है. तो इस केस में क्या करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द बॉन्ड एंथैल्पी. हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड वाज प्रेजेंट हुआ था. इस केस में देयर आर 4 बॉन्ड्स, बॉन्ड है CH के. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट बॉन्ड एंथैल्पी. सो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे अगर प्रेजेंट करना है तो दैट हैज टू बी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है दिस कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी. तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे. लेकिन अगर वहां पे ज्यादा बॉन्ड है, एक से ज्यादा बॉन्ड है, सिमिलर टाइप के बॉन्ड है, तो उसे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं. रीजन बिहाइंड दैट, पहले इसके लिए अलग एनर्जी, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग अलग, नेक्स्ट के लिए अलग. तो सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग. तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी अलग है, इसका मतलब इसका 426 है, 434 है, 444 है, इसका वापस 416 आ जाता है सीधा, फोर्थ वाले का एकदम कम आ जाता है. सो दैट्स व्हाई एवरेज की अगर बात करते हैं तो 426 ऑलमोस्ट समथिंग आ जाता है. दैट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इसके अंदर हो जाता है. सो ये कॉन्सेप्ट इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि कुछ मॉलिक्यूल जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पे सिमिलर बॉन्ड्स, मतलब 2 और मोर सिमिलर बॉन्ड्स कैन बी प्रेजेंट. सो इन दैट केस बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो और ऑलवेज कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. Or in case of monoatomic molecule or diatomic molecule, bond is always single. That is also called as bond enthalpy. So this is also bond enthalpy. This is also bond enthalpy. But this is for polyatomic molecule having 2 or more similar bonds that has to be represented with bond enthalpy, average bond enthalpy, isn't it? So definition क्या है bond enthalpy? Bond enthalpy का definition है the amount of energy released whenever a bond is formed, है ना? या फिर amount of energy required to break the bond, है ना? ये होता है. लेकिन सवाल ये है कि bond किसके अंदर है? Bond molecule के अंदर है. और मॉलिक्यूल हम कहते हैं, हम उसे वन मोल कहते हैं, वन मोल कहते हैं. तो इन दैट सेंस डेफिनेशन ऐसा होता है, चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनिंग द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ वन मोल बॉन्ड्स या ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल मॉलिक्यूल. ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. और क्लियर विद दिस, टू चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनिंग द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल गैसियस मॉलिक्यूल, है ना? ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल गैसियस मॉलिक्यूल is called as, you can say, bond enthalpy. उसे हम लोग bond enthalpy ऐसा कहते हैं. Clear? So that is over here. And the last topic here, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब bond enthalpy के साथ enthalpy का last topic जो इसके साथ जुड़ा है, that is enthalpy of reaction from bond enthalpy. So you can say change in enthalpy of reaction from bond enthalpy. Change in enthalpy of reaction from bond enthalpy. चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के रिएक्शन का हमें एंथैल्पी निकालना होता है. इस तरीके से होता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कहते हैं कि H2 plus Cl2 प्रोड्यूसेस ट्वाइस HCl, ये ऐसा होता है. सो ये हमारा होता है. तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे? तो अभी ये हमारे रिएक्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारे रिएक्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज एक्सेप्शनल.
दिस इज द रिएक्शन विच इज एक्सेप्शनल। बाकी सारे स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं हम लोग, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट लेते हैं बराबर ना। ये इकलौता फॉर्मेट है एक्सेप्शनल जिसके अंदर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई उस तरीके से टॉपिक याद रखना थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पहली बार आता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अभी तक जितने सारे लिखे उसके अंदर हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अभी इसके अंदर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों करते हैं, why it's like exception, reason behind that is these are the reactant and these are product. Unless and until bond between the reactants are not broken, unless and until bonds between reactants are broken, we won't be having this products or bond between the products. So first all bond between the reactant breaks and then the bond between the products are formed. That's why this is the reason because of which this bond enthalpy of the reactant is written first and bond enthalpy of product is written afterwards. जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते तब तक ये बॉन्ड फॉर्म होने की चांसेस नहीं है और नहीं थे, और इसीलिए ये टॉपिक इस तरीके से लिया जाता है कि पहला लिया जाता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट फॉलोड बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से आ जाता है। सो इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में ये है, तो ये आएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 का बॉन्ड है जो भी है वो लिखना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट में आएगा माइनस यार बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl into 2 क्यों आएगा, बिकॉज़ 2 मोल्स है। तो एक HCl का जो बॉन्ड एंथैल्पी वो यहाँ पे into 2 आएगा ये, और इसका जो भी आंसर आएगा ये इस तरीके से आएगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा H इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले हीट ऑफ रिएक्शन पे लिखा था, हीट ऑफ रिएक्शन हमने क्या लिखा था, हीट ऑफ रिएक्शन में हमने लिखा था दैट इज समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला उसके अंदर आ जाता है। क्लियर विद दिस? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड विद द एंथैल्पी। हियर ऑनवर्ड्स अभी भी एक टॉपिक है उसके अंदर का, दैट इज यू कैन से हिस लॉ, बट वो हिस लॉ एक अलग ही है जो इसी एंथैल्पी को लेकर आगे चलता है। व्हाट वी हैव सीन और व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे's lecture, we have seen different types of enthalpies. So basically we have started with the thermochemistry. Thermochemistry is a branch of chemistry which is dealing with heat changes taking place during the course of chemical reaction. Then we have seen exothermic reaction, then we have seen endothermic reaction, depends upon the delta is either negative or either positive. Then we have seen standard enthalpy of the reaction. If all reactants and products are in their standard state, then that is called as standard enthalpy. And the enthalpy difference between the product and reactant, if all the reactant and products are in their standard state, then that must be known as standard enthalpy of reaction. ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद देखा हमने that is standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, ये हमने देखा। फिर thermochemical equation डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद देखा हमने bond enthalpy, average bond enthalpy and reaction enthalpy from the bond enthalpy. So these are the different kinds or types of, you can say, enthalpy over here. Now tomorrow we are going to discuss His law. Clear with this? So thank you much. See you tomorrow.